So today I'll start with some simple questions. Suppose you are moving in a straight line. You moved by a distance of 5 meters, and then in second part you continued from the final point in the same direction and continued till 3 meters. What will be the displacement here? Obviously everyone will agree the displacement will be the shortest path between A to C, and that will be 8 meters. All will agree that the displacement will be 5 plus 3 meters, that is 8 meters. Okay. In another case, if the first movement is similar to 5 meters, but at this point, that is at point B, the particle stops, changes its direction by 180 degrees, takes a U-turn and comes back 3 meters So this is point C for this case. A is the initial point and C is the net final point. So what will be the displacement here? Here the displacement will be 5 plus minus 3, that is 2 meters. Agreed? Everyone? Yes, sir. Another case. If a particle is moving with a displacement of 4 meters in this direction and takes a turn at 90 degree and further moves with a displacement of 3 meters. What will be the net displacement in this case? What will be the net displacement in this case? Obviously, you will have to use Pythagoras theorem. And by Pythagoras theorem, you will find that the displacement in 5 meters. Here, I can write somehow the displacements 4 meters, that was a vector that was in some direction. I'll explain exactly what is vectors, but for the time being, the quantities which have magnitude as well as direction. The 4 meter was displacement. This path A to B was displacement, right? So it has got direction. It has got its own direction, and the 3 meter path also have got its own direction, and the direction of the two are different. Somehow 4 meters and 3 meters summed up to 5 meters. Obviously this is not normal algebra, right? If you show this calculation to a kid, he or she will say that this calculation is wrong. 4 plus 3 should yield in 7. But here we are not using normal algebra. You have studied algebra on basis of scalar quantity always. Scalar quantities are those which have only got a magnitude, not a direction sense, है ना? स्केलर क्वांटिटीज वो ही होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन सेंस नहीं होता है. तो स्केलर्स के लिए 4 plus 3 को 5 लिखना गलत लगेगा, गलत है. बट आई हैव नॉट रिटन इन देम इन स्केलर फॉर्म. कैसे पता? मैंने उनके ऊपर एरो लगाया है जो बताता है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है. देखिए, अगर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ x या एक मैं अननोन कांस्टेंट लिखता हूँ a, तो ये दोनों स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर्स है. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर मैंने मार्किंग नहीं की है. तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ऊपर इस तरह की मार्किंग हो, इस तरह की या इस तरह की,
तो दे आर वैक्टर्स. And vector algebra is not like normal algebra. और normal algebra से क्या मतलब है? Scalar algebra. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं algebra for vector quantities. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले अलजेब्रा फॉर वेक्टर क्वांटिटीज. इतना क्लियर है सबको? मेरे को रेस्पॉन्स चाहिए. यस सर. ओके, दो का बहुत है. किसी को अनक्लियर हो तो प्लीज बोलिए. अब आगे वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती है. सबसे पहली वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आप लोग अच्छे से जानते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट अगेन. अगर नहीं जानते तो गो टू योर प्रायर क्लास जहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट समझाया है. उस पेज पे जाइए जहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट समझाया है. तो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी को आप अच्छे से जानते हैं. वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी क्वांटिटीज है जो वेक्टर्स होती हैं. वी विल मोस्टली टेक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट. जैसे यहां पे लिए वेक्टर अलजेब्रा स्केलर अलजेब्रा को सपोर्ट कर जाएगा. वेक्टर अलजेब्रा स्केलर अलजेब्रा को सपोर्ट कर जाएगा. अभी तक हमको सिर्फ स्केलर अलजेब्रा पता है. स्केलर अलजेब्रा में डायरेक्शन नहीं था. मेरी बात ध्यान से सुनिए. स्केलर अलजेब्रा में डायरेक्शन नहीं था. स्केलर अलजेब्रा मैथमेटिक्स का सोर्स नंबर लाइन कितने डायमेंशन की होती है? आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस. नंबर लाइन कितने डायमेंशन की होती है? वन डायमेंशन की. ऑब्वियसली वन डायमेंशन की. वेक्टर्स जिनमें डायरेक्शन का भी सेंस होता है, तो एटलीस्ट डायरेक्शन का सेंस पढ़ने के लिए हमको टू डायमेंशन में पढ़ना पड़ेगा. ऐसी कोई रेफरेंस की चीज है, जैसे वन डायमेंशन में रेफरेंस की चीज नंबर लाइन है. वन डायमेंशन में अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो एक पॉइंट काफी है, 0, तो उससे पूरा रेफरेंस की लाइन बन जाती है. वन डायमेंशन में रेफरेंस की लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इजीली. टू डायमेंशन में रेफरेंस के लिए क्या यूज करेंगे? टू डायमेंशन में रेफरेंस के लिए आप यूज करोगे एक्स वाई एक्सिस सिस्टम, जिसको आप किस तरह से समझ सकते हो? एक्स वाई एक्सिस सिस्टम दो नंबर लाइंस है विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हाँ या नहीं? एक्स वाई एक्सिस सिस्टम बेसिकली दो नंबर लाइंस है विच आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हाँ या नहीं? बोलिए. तो सपोज इसी चीज को मुझे इस एक्स वाई सिस्टम में बोलना हो, तो मैं क्या बोलूंगा? 4 along x axis प्लस 3 along y axis इज इक्वल्स टू 5 विथ जितना भी ये एंगल आएगा. सपोज दिस एंगल शुड बी अराउंड 37 डिग्रीज. तो 5 मीटर्स, 4 मीटर्स along x axis plus 3 meters along y axis should be equal to 5 meters with 5 meters at 37 degrees to x axis. समझ में आ रहा है हाउ टू रिप्रेजेंट? समझ में आ रहा है? वेदिका माइक ऑन करो. हाँ सर. अब मेरे को बता,
अलोंग एक्स एक्सिस पूरा बार बार लिखने की जगह मैं कुछ शॉर्ट डिनोशन ले सकता हूं क्या? हाँ क्या लूं? सर। सर, 4 सर प्लस 3 स्टूडेंट, क्या लूं? कुछ भी, तेरी इच्छा जो हो। 4 pencils. Pencils plus 3 pens. And what does pencil represent here? What does pencil represent here? बोलो. What does pencil represent here? Pencil represents along x-axis. कितना along x-axis? Obviously 1 unit along x-axis. Plus 3 pens is equals to 5 meters at 37 degrees to x-axis. अब जैसे वेदिका ने पेंसिल लिया और पेंसिल का क्या मतलब है? along x-axis. तो कन्वेंशनली क्या लेते हैं? कन्वेंशनली मतलब बाकी के लोग क्या लेते हैं? बाकी के लोग इसको पेंसिल लिखने की जगह लिख देते हैं आई, और आई पे बर्थडे की कैप, आई कैप या आई रूफ, कुछ भी बोल सकते हैं. ये ऊपर सिंबल क्यों बनाते हैं? ये ऊपर सिंबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिना टोपी के अल्फाबेट्स, बिना टोपी के सिंबल्स आप यूज करते आए हो स्केलर्स के लिए. तो ऊपर कुछ बना देना मतलब इट इज रिलेटेड टू वेक्टर्स. एग्रीड? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे मैं लिखूंगा 4 अलोंग एक्स एक्सिस को 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप. तो मैं इन दोनों वेक्टर्स को इंडिविजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. दिस वेक्टर इज 4 आई कैप, दिस वेक्टर इज 3 जे कैप. अब बिकॉज इट इज अ वेक्टर, इट हैज टू गेट सम डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के लिए सिर्फ मैं लाइन पे एरो बना दूं तो डायरेक्शन मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है. इस पे एरो बना दिया तो डायरेक्शन मिल गई. तीसरी वाली जो डॉटेड बनाई है ये एक्चुअल में तो सॉलिड बनेगी और इस पे एरो बना दिया. तो वी हैव गॉट 3 वेक्टर्स. व्हेन दिस एंड दिस ऐड, आई विल गेट द रिजल्ट नेट वेक्टर which is known as resultant as this. अब 5 meters at 35 degrees to x-axis, this is a bad way to represent. तो इस वेक्टर को भी मैं पूरा 5 meters लिखने की जगह लिख सकता हूँ ना 4 i कैप प्लस 3 j कैप. हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? गलत तो नहीं है? Yes, sir. There is no simpler way to represent this vector with direction. वेक्टर बोल रहा हूँ तो विथ डायरेक्शन तो है ही. There is no simpler way to represent this vector. This is the simplest way. मैं 5 के आगे कुछ छोटा सा सिंबल बना के नहीं कर सकता, मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा 5 at 35 degrees to x axis, या पूरा कुछ किसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बड़ा होगा. दिस इज द सिंपलेस्ट वे. एग्रीड? जैसे आप 4x प्लस 3y, वेदिका सॉल्व करके बता इसको. सर x और y की वैल्यू अज्यूम करके ना? नहीं, वेरिएबल से दोनों. सॉल्व दिस. Krish, can you solve this further? Can you solve this further? Akhinish? No, you cannot solve this further. क्योंकि दोनों अलग अलग है. क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, या आपने छोटी क्लास के हिसाब से बोलूँ, प्रायर क्लासेस के हिसाब से बोलूँ तो दे आर अनलाइक क्वांटिटीज, अनलाइक टर्म्स है. मैथमेटिक्स में टर्म्स बोलते हैं. तो उसी तरह से 4i प्लस 3j को इकट्ठा करके और सिंपलर फॉर्म में नहीं लिख सकते. मैं बताता हूँ इसको और क्या लिख सकते हैं. इसको आप लिख सकते हो 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप, ये लिख सकते हो. तो ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया ना. यहाँ पे बता रहा है ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है.
पर ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया ना लिखना। थोड़ा सा समझे, आगे चलूँ।